So we have to study the expression for rate constant. Expression for rate constant of first order reaction. Or this is also known as integrated rate law. Integrated rate law for first order reaction. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा, उसका रेट कांस्टेंट हमको निकालना है. दैट इज और यू हैव टू दैट प्रूव दैट k is equal to so this is also known as integrated rate law or expression for rate constant. We have to prove this one. So for this we have to consider a first order reaction. Consider a first order reaction. The first order reaction is considered as this one. A converted into product. So that rate will be equal to K into concentration of A raised to the power 1. यहाँ पे 1 लिखा नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है. So यहाँ पे हम A0 जो है that is initial concentration of A, then A0 minus X will be the concentration of A after time t. A0 minus X will be the concentration of A after time t. तो X क्या है? तो X जो है that is amount of A that undergo reaction. ठीक है. So this is what A0 initial concentration of A. Then A0 minus X जो रहेगा that will be the concentration of A after time t. And X क्या है? तो amount of A that undergo reaction. A इसमें से कितना कम होगा? That is the change in concentration. That is A minus A0 minus X. That will be the concentration after time t. ठीक है. So यहाँ पे इसका therefore rate is equal to, we have this K into A raised to the power 1. 1 लिखा नहीं लिखा. Now this rate is given by minus dA by dt. Raised to the power 1 क्यों लिख रहे हैं? Because we are going for what type of reaction? First order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जा रहे हैं तो A रेस टू द पावर 1 होना चाहिए, लेकिन लिखते नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसको हम रीअरेंजिंग द टर्म्स करेंगे यहां से आगे. माइनस dA अपॉन A इज इक्वल टू K into dt. नाउ दिस इज व्हाट डिफरेंशियल रेट लॉ. नाउ इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट integrated rate law. So we are integrating both sides. अब आपका डेफिनेट इंटीग्रल हुआ है तो we can use the definite integral. Okay. Now this is minus derivative of A upon constant A, that is equal to K into dt. So this time is from 0 to t.
टाइम का जो लिमिट है फ्रॉम 0 to t, और a का जो लिमिट है इनिशियली दैट वाज a0, आफ्टर टाइम t दैट बिकम्स a0 minus x. a0 minus x is what? a0 minus x is the concentration of a after time t. So this is lower limit and this will be upper limit for the integration. Now this is what? A derivative of a upon a. So this will be what? Log of a. Now this has the limits from a0 to a0 minus x. ठीक है, और इधर में k into t, t की लिमिट से 0 to t. Now upper limit minus lower limit करेंगे हम यहाँ पे. This is upper limit, this one is lower, यहाँ पे lower limit और upper limit 0 to t. वो 0 टाइम का concentration जो है वो a0 है, t टाइम पे that is a0 minus x. तो इधर चलता है. So this is what? Minus upper limit a0 limit. Okay. So this will be k into bracket t minus 0, that is t. t minus 0 t होगा of a0 minus log a0 minus x is equal to kt. Or you can say that k into t is equal to log of a0 upon a0 minus x. Now this is, यहां से वहां तक का जो बेस है लॉग का हमारा वो e रहेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो अब यहां से आगे यदि चलते हैं हम तो 1/t हो जाएगा वो. सो k विल बी इक्वल टू 1/t लॉग, ठीक है. नाउ दिस को चेंज कर देते हैं हम बाय 10, तो अब हमारा ये यूजफुल हो गया. So this will be the expression for rate constant of first order reaction. कोड क्लियर है? Okay. So rate constant का जो एक्सप्रेशन लिखा हमने k is equal to 2.303 upon t log a0 upon a0 minus x. So initial concentration upon change in concentration to the base 10. So यहाँ पे ये जो k आ गया ये रेट कांस्टेंट है और इसका यूनिट जो है दैट विल बी टाइम इनवर्स. ये तो कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट्स वाले हैं. अब बचा 1/t का यूनिट जो भी है वो टाइम इनवर्स में आएगा. So k will have the unit time inverse, that may be second inverse, minute inverse और hour inverse. एक आदि रिएक्शन बहुत फास्ट है तो सेकंड इनवर्स में रहेगा, बहुत स्लो है तो मिनट इनवर्स में, या फिर और फास्ट है तो यू कैन टेक आवर्स, मिनट, सेकंड, डेज, कुछ भी हो सकता. सो दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. के नीचे का मिटा दूं मैं. हाँ, इसी में हमारा एक टी हाफ वाला एक्सप्रेशन है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इसके पहले हमने जीरो ऑर्डर का किया है. We have the rate constant. अभी जो हमने बनाया k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log
सो व्हाट इज दैट? A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 माइनस एक्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T। एक 10 मिनट बाद में ये कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। हमको एक ऐसा टाइम ढूंढना है जिसमें जो A0 माइनस एक्स है दैट विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल, दैट इज व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ। हाफ लाइफ इतना जब टाइम हो जाएगा, दैट केस आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है A0 माइनस एक्स विल बिकम half of the initial. When T is equal to T half, that concentration will become half of the initial. That is by definition. By definition, the time in which the concentrations of the reactant reduces to half of the initial value, that is called as half-life time, half-life period. So HLP जो है वो हाफ लाइफ पीरियड है किसी रिएक्शन का। इसका मतलब ये हुआ कि उतने टाइम के बाद में concentrations of the reactant will reduces to half of the initial value। ऐसा डेफिनेशन हमने इसके पहले किया है। Now we put there, ये आपका इक्वेशन 1 है सपोज। यस, टी की जगह पे टी हाफ, देन लॉग A0 में कोई चेंज नहीं, A0 माइनस एक्स जो है उसके लिए हमने रखना है A0 बाई 2, मतलब हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो टी हाफ इधर कर लेते हैं ऐसे, ऑन के ये 2 ऊपर गया, ट्वाइस A0, सो व्हाट लेफ्ट? log of 2 means you have to use log of 20, log of 20 उधर का मिटा दूं मैं, okay. Now T half will be equal to, now we have that log of 2 means 0. Okay, then divided by k. If you multiply these two numbers, then that will be so this will be the expression for half life of first order reaction। इसमें कोई concentration term नहीं आ रहा है तो हम ये लिख सकते half life period of first order reaction is independent of concentration। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है उसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं रहेगा, तो इन दैट केस दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन। सो नाउ इसके पहले हमने जीरो ऑर्डर किया था, जीरो ऑर्डर में भी रेट कांस्टेंट आया था आपका, देन टी हाफ आ गया था। ये फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें भी ये दो है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं नेक्स्ट इसमें। यस, shall I continue? ओके, ये मिटा दूं सब। अब यदि मेरे पास में
जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और दूसरा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें रेट जो है दैट इज गिवन बाय R इज इक्वल टू K इंटू A रेज टू द पावर 0 मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देन यहाँ पे रेट जो है दैट इज व्हाट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर। ठीक है, यहाँ पे यूनिट ऑफ K देखते क्या आएगा, that will be same as that of rate of reaction. We have that MS inverse, or you can have that mole per dm cube second inverse. This is the for zero order. Now in case of first order, we have that K, that is, or you can say time inverse. Then formula for K, yes, initial concentration minus final concentration means what? Or you can say that is x by t, change in concentration upon time. जबकि यहाँ पे K का जो फॉर्मूला है दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये भी इंटीग्रेटेड है, ये भी इंटीग्रेटेड है। देन इसको यहीं पे कर देते हैं। इसका हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला आपने निकाला है, directly proportional to initial concentration. T half is inversely proportional, directly proportional to initial concentration. जबकि यहाँ पे T half is independent of initial concentration. Okay, in general यदि nth ऑर्डर रिएक्शन है जिसका ऑर्डर n है तो वहां पे कैसे बनेंगे यूनिट्स इनकी, ये देखते हैं। ऊपर का सब मिटा देते हैं। Unit of K will be m raised to the power 1 minus n second inverse. Now this can be mole per dm cube raised to the power 1 minus n. Now if it is a first order, then n is equal to 1, n is equal to 1, so 1 minus 1 0, m raised to the power 0 नहीं रहेगा, dm raised to the power 0 नहीं रहेगा, so second inverse बचा। If it is a zero order, then n is equal to 0 रखेंगे यहाँ पे, then 1 मतलब मोल पर dm क्यूब सेकंड इनवर्स, यहाँ पे मोल पर dm क्यूब सेकंड इनवर्स। ये सेकंड ऑर्डर रहा तो क्या रहेगा, यस सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, यूनिट ऑफ K will be equal to m raised to the power 1 minus 2 second inverse is equal to क्या हो जाएगा, m minus 1 s minus 1। नाउ m जो है वो होता है मोल पर dm क्यूब, ये वाला, इसको हम लिखेंगे अब मोल इनवर्स dm क्यूब हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ऐसे।
देन हाफ लाइफ यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उधर nth ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे होगा वो भी कर लेते हैं। मिटा दो नीचे का सब सर। ओके ओके, जीरो ऑर्डर है तो 1 माइनस 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जीरो ऑर्डर हो गया तो टी हाफ ऐसे होगा। फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो क्या होगा 1 माइनस 1 0 ए रेज टू द पावर 0, सो टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ ए जीरो। यदि n इज इक्वल टू 2 है आपका, देन 2 रखा है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी हाफ n थर्ड ऑर्डर 1 माइनस 3 माइनस 2 ए जीरो रेस टू द पावर माइनस 2, मतलब ये ऐसे हो जाएगा n is equal to 1 2 3 रख दिए मैंने 0 1 2 3, तो in this way you can get the half life। ओके मिटाना है ये सब। ओके then number of half life is equal to T half, that is x is equal to given time divided by T half। ठीक है, now अब हमारे पास में कितना अमाउंट बचेगा आफ्टर 5 हाफ लाइफ। यहाँ पे सपोज 100 मिनट इज द टाइम इंटरवल एंड 20 इज द हाफ लाइफ। 100 मिनट में कितने हाफ लाइफ आएंगे 20 के हिसाब से 5। यदि ये 200 के हिसाब से देखेंगे तो दैट विल बी 0.5। ठीक है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जांपल 560 मिनट है टाइम इंटरवल, डेज है डिवाइडेड बाय 140 डेज, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने आ गए 4। 140 दिन का एक हाफ लाइफ है, ऐसे 560 दिन यदि हो जाते हैं 560 डेज में, नंबर ऑफ हाफ लाइफ विल बी 4। सो इन दैट केस हाफ लाइफ तो निकाल लिया आपने, कितने हाफ लाइफ हो गए, तो यहाँ पे t by t half 560 divided by 140, that will be 4। now अमाउंट कितना बचेगा आपका, a0 minus x will be equal to a0 upon 2 raised to the power x, so this will be the amount left। यदि मैं 5 ग्राम से स्टार्ट किया हूं रिएक्शन, if a reaction is started with 5 mole or 5 gram, then after 20 minutes that will reduce to half। again next half life में जाएंगे आप, so that will be 1.25। next half life में जाएंगे आप
कितने हाफ लाइफ हो गए 3, सो इसका 1.25 है आपका, दैट विल बी 62.5, और एक हाफ लाइफ ले लिया मैंने, तो इन दिस वे 3 हाफ लाइफ हो गए आपके। इफ यू स्टार्ट विद 100 ग्राम, then after 20 minutes that will become 50, then after 20 minutes that will become 25, half of the initial, again after 20 minutes that will be 12.5 gram and so on. तो अभी यहाँ 3 हाफ लाइफ हो गए, 1 2 3, तो आपका x कितना हो गया 40, 60 divided by 20, that is 3. So amount left A0 minus x will be A0 upon 2 raised to the power 3. A0 कितना है आपका 100 ग्राम है ये वाला, ठीक है, divided by 2 raised to the power 3 means 8. So that comes out to be 12.5 gram. So in this way you can solve this problem also. Okay, so in all, zero order में that is directly proportional to initial concentration. First order में T half is independent of initial concentration. Second order में जाएंगे तो it is inversely proportional to initial concentrations of the reactant. दूसरा होता है टाइम रेट कांस्टेंट की यूनिट्स फॉर वेरियस रिएक्शंस, तो मैंने बताया आपको वो ms इनवर्स कर देने का पहले, और नाउ दिस m विल हैव द पावर 1 minus n, where n is what order of reaction. जीरो ऑर्डर है तो ms इनवर्स होगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो ये मतलब जीरो हो जाएगा, सेकंड इनवर्स बचेगा, सेकंड ऑर्डर है तो दैट विल m minus 1 s minus 1. तो इन दिस वे यूनिट्स वगैरह यदि कर लेते हैं आप तो आपका MCQ कभी गलत नहीं होता इसमें. ओके, यहाँ रुकेंगे हम, यहाँ पे रुकते हैं.